Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبر نامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ 2 جون جمعے کا دن جاری موسم گرما کا گرم ترین دن ثابت ہوا۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا درجہ حرارت۔ ریاست اڑیسہ کے بالیشور ضلع میں کورومنڈل ایکسپریس ٹرین کا حادثہ، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے کیا گہرے صدمے کا اظہار۔ عازمین حج کے لیے حیدرآباد کے ریڈ روز فنکشن پیلس میں سینٹرل حج کمیٹی اورینٹیشن اینڈ اویئرنیس پروگرام، وزراء محمود علی طلسانی، MLA جعفر حسین معراج، مولانا مفتی خلیل احمد و دیگر کا خطاب۔ تلنگانہ بھر میں منایا گیا فارمرز ڈے۔ MLC کویتا نے ضلع کاماریڈی کے سداشیو نگر منڈل میں منعقدہ ریتو دنوتسوم تقریب میں کی شرکت۔ CM KCR کا مقصد کسانوں کو بادشاہ بنانا ہے۔ بوئن پلی میں منعقدہ فارمرز ڈے پروگرام سے وزیر طلسانی کا خطاب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ 2 جون جمعے کا دن جاری موسم گرما کا گرم ترین دن ثابت ہوا۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں 43 ڈگری سیلسیس جبکہ اضلاع میں تقریباً 46 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد کے کئی مقامات پر دن کے وقت کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مسلسل 42 اور 43 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ تلنگانہ کے 10 سالہ یوم تاسیس تقریبات کے ضمن میں جمعے کو عام تعطیل کی وجہ سے اسکولوں، سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر بند رہنے سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے گھر کے اندر رہنے اور ہیٹ ویو سے بچنے کا انتخاب کیا۔ اس کے نتیجے میں خاص طور پر دوپہر سے شام 4 بجے کے درمیان جب گرمی اپنے عروج پر تھی، شہر کی سڑکیں سنسان نظر آئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند دن تلنگانہ میں انتہائی گرم رہیں گے، جبکہ حیدرآباد کے کچھ حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم ہیٹ ویو جیسے حالات غالب رہیں گے جو 14 جون تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ اسی درمیان محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ بھارت میں جنوب مغربی مانسون کی آمد میں تاخیر ہوگی۔ کیرالہ میں 4 جون کو بارش کی توقع ہے، پھر مانسون کی آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی سمت پیش رفت ہوگی۔ 8 جون کو آندھرا میں مانسون کی آمد متوقع ہے، جبکہ تلنگانہ میں 10 اور 12 جون کے درمیان مانسون کی آمد ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ریاست اڑیسہ کے بالیشور ضلع میں بہاناگا ریلوے اسٹیشن کے قریب کورومنڈل ایکسپریس ٹرین کے حادثے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسے انتہائی افسوسناک واقعہ قرار دیا اور اس خوفناک ٹرین حادثے میں متعدد افراد کی موت اور زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار کیا۔ KCR نے سوگوار خاندانوں سے اپنی گہری تعزیت پیش کی۔ انہوں نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں سے درخواست کی کہ وہ زخمیوں کو ضروری طبی علاج کے اقدامات کریں اور ان خاندانوں میں اعتماد پیدا کریں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس حادثے میں کھو دیا۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں واقع ریڈ روز فنکشن پیلس میں عازمین حج 2023 کے لیے سینٹرل حج کمیٹی اورینٹیشن اینڈ اویئرنیس پروگرام منعقد ہوا۔ اس تقریب میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر طلسانی سرینواس یادو، نامپلی سے مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، مولانا مفتی خلیل احمد، وائس چانسلر جامعہ نظامیہ مولانا جعفر پاشا ثانی کے علاوہ مفتی اکرام نے حج کے فرائض اور دیگر امور پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین محمد سلیم، ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ، حج کمیٹی کا
अरकान और अमला मौजूद था। जितनी मदद हो सके, जितना खर्चा हो सके, किसी किस्म की फिक्र मत कीजिए। सारी हुकूमत आपके साथ है और हम आपसे यही दुआ करेंगे कि आप अल्लाह ताला से जरूर दुआ कीजिए। साथ ही साथ आपकी दुआ के बाद हमारी हुकूमत के लिए भी दुआ कीजिए। सारे हिंदुस्तान में कहीं अमन का गहवारा है, किसी जगह गंगा जमुना तहजीब है, जहाँ प्यार मोहब्बत है, वो तेलंगाना स्टेट है। आपको एक बात बताता हूँ, 2014 में तेलंगाना स्टेट बनी है। जब से आज तक हमारे स्टेट में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं हुआ, उसका सेहरा हमारे सीएम साहब को जाता है। मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह इस मरतबा जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकेगा, चाहे एयरपोर्ट का हो, इमिग्रेशन हो या फ्लाइट के बारे में मुझे मालूम हुआ अभी कि छोटे फ्लाइट्स हैं। इंशाल्लाह अभी जाकर सुमिता ईरानी मैडम हो या जिससे भी हो, मैं शफीउल्लाह साहब से बात करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि हम भी बोले गए और माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। तो जिंदगी में हर आदमी को, जो गरीब रहे तो, मिडिल क्लास रहे तो, अमीर रहे तो, एक बार जिंदगी में उसको जाना बोल के अपने को पहले से ही रहता। मगर थोड़े लोग को क्या है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं जा सकते। मगर तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो इंतजाम कर रही है आपके लिए बेशक बहुत बड़ा इंतजाम है। आज हिंदुस्तान में आप लोग जानते, आज तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब आए बाद, अपने तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद अपन सब आगे मिलजुल के आगे बढ़ रहे। आज रमजान के महीने में भी तेलंगाना हुकूमत बहुत सारे इंतजाम कर रही। तो ये सब आप लोग जानते मेरे भाइयों। आज हिंदुस्तान में माहौल क्या है आप लोग जानते। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करिए, हमारे से अगर कोई खताएं हो गई है तो उसको माफ करिए। ये तरीके से हाजी को होना चाहिए। मगर बदकिस्मती इस बात की होती है कि हम दुनियाई गिरी में इतने परेशान होते हैं। हमारा जब होता है तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, इंसान जब जाता है हज करे तक उसकी एक मिजाज होती है। जैसे ही हज मुकम्मिल हो जाता है, अगर फर्ज करिए 35 दिन 40 दिन का होता है, एक 15 दिन में हज हो जाता है और एक उसको 1 महीना रहना पड़ता है, तो वह इतना बेचैन हो जाता है। बार बार हज कमेटी के जिम्मेदारों के लिए जाता है और यही कहता है अगर मेरी फ्लाइट कुछ चेंज हो जाती है तो जल्द से जल्द जाना है, मेरे को वहाँ पे परेशानी है, मेरे कारोबार में तकलीफ हो रही है, मेरे बच्चे परेशान हैं, वो बीमार है। इस तरीके से उसकी मिजाज हो जाती है। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बार बार ये मौका नहीं मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करोड़ों लोगों में आपको मुंतखब किया है, करोड़ों लोगों के अंदर आपको पसंद किया है और अपने पास बुला रहा है। तो ऐसे मौके का आप भरपूर फायदा उठाना चाहिए। कि अल्लाह लोगों को हज के लिए आप रवाना फरमाइए। काबतुल्लाह की तामीर में आज आप जो जाते हैं ना, पढ़ते हुए जाते हैं ना, क्या पढ़ते जाते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। पढ़ो ना एक वक्त, वो भी नहीं पढ़ते। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। चलिए बस माशाल्लाह। ये उस सब जब जो दुआ करे थे उसका आप जवाब दिए हैं यहाँ से। वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी उसका ये जवाब है। अपने को अल्लाह को राजी करना है, अपने को बंदों को राजी करना नहीं है। अल्लाह राजी तो सब राजी है, यहाँ से वहाँ तक सब चीज अपनी आसान हो जाती है। और अल्लाह का करम ये है कि हम भी एक जमाने से जो है ना हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ से फ्लाइट नहीं जाती थी, जब बेगमपेट एयरपोर्ट था भी तो नहीं जाती थी फ्लाइट, बेंगलुरु जाके बम्बई जाके अपने हाजी साहबान को जाना पड़ता था। मगर अल्लाह का करम ये रहा कि हमारी कोशिश, फ्लाइट चालू हुई और इनॉग्रेशन भी समझो अल्लाह का करम है, अपने हाथ से हुआ। और अल्लाह का कितना भी मैं शुक्र अदा करा कम है, क्योंकि हैसियत से ज्यादा अल्लाह ताला हमारे से काम लिया है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र ये है कि किसकी दुआ है क्या है नहीं मालूम, हम अल्लाह की रजा के लिए काम करना है, किसी को दिखावा करना है या किसी को हम करे बोल के बताना नहीं। हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हम एक धूल के बराबर है अल्लाह के साथ। वो एहतराम का पैकर बनकर सलात व सलाम के नजराने पेश करके रहमतों बख्शिश व मग़फ़िरत के खैरात लेकर आएंगे, तो फिर अपनी जिंदगियों से दुनिया वाले ये समझे कि ये शख्स वो है जिसने बैतुल्लाह भी हाजिरी दी है, हबीब पाक के रोज़े घर पर भी हाजिरी दी है,
سے امن اور سلامتی اور رحمت مل رہی ہے. اور آخری بات یاد رکھو, ہمارے ملک میں ہم سیکولر ملک میں جی رہے ہیں. ہمارے آقا کی بارگاہ سے جب آئے تو حضور پاک نے جو تمدن دیا ہے, جو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے, جو انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا پیغام دیا ہے, اس پیغام کو بھی دل میں بسا کے لاؤ. نبیوں کے سردار علیہ السلام نے ایک مومن کی تعریف یہ فرمائی ہے, والمومن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. کامل مومن وہ ہے جس سے تمام انسانوں کی جان بھی محفوظ ہو, مال بھی محفوظ ہو. حبیب پاک نے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن. جس انسان سے بھی تم تعلق رکھو, جس سے بھی سلوک کرو, اخلاقی حدوں کو کبھی پھلانگو نہیں, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اللہ سے میری دعا ہے پروردگار آپ کے حج و عمرہ و زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آپ رحمتوں برکتوں سے مالامال ہو کر صحت و سلامتی کے ساتھ وطن لوٹیں, اور دوسروں کے لیے بھی آپ رحمت و برکت کا باعث بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تلنگانہ ریاست کی 10 سالہ یوم تاسیس تقریبات کے حصے کے طور پر BRS پارٹی MLC کے کویتا نے آج ضلع کاماریڈی کے سداشیو نگر منڈل کے پدماجی واڑہ میں منعقدہ رائتو دنوتسوم یعنی فارمرز ڈے تقریب میں شرکت کی اور کسانوں سے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ یہ KCR حکومت ہی تھی جس نے ریاست کے کسانوں کو عزت دی. کویتا نے یاد دلایا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے کسانوں کی خودکشی کے واقعات ہوتے تھے, لیکن اب ایسے واقعات نہیں ہو رہے ہیں. اسی طرح بیج اور کھاد کی کوئی کمی نہیں ہے, جبکہ جعلی بیج کے معاملے میں سخت کارروائی کی جا رہی ہے. کویتا نے کہا کہ ہم سب لوگ ملک کی سرحد پر جوان اور کھیتوں میں کسان دونوں کی وجہ سے امن سے رہ رہے ہیں. اس موقع پر رکن اسمبلی جے سریندر, اردو اکیڈمی چیئرمین مجیب الدین اور مقامی عوامی نمائندوں کے علاوہ کسانوں کی کثیر تعداد موجود تھی. اس سے قبل MLC کویتا اور دیگر قائدین نے ایک شاندار ریلی میں شرکت کی. గౌరవనీయులు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి స్థానిక శాసనసభ్యులు అన్న జాజల సురేందర్ గారికి, అక్క ZP చైర్పర్సన్ గారు దఫేదార్ శోభ గారికి, అదేవిధంగా పరిపాలనా అధికారి గారు జితేష్ పటేల్ గారికి, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు పేరు మర్చిపోయిన బ్రదర్ శివేంద్ర గారికి, అట్లానే మా అన్న ముజీబ్ అన్న ఉర్దూ అకాడమీ చైర్పర్సన్ గారు వారికి, అట్లానే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి స్థానిక MPP గారు అనసూయమ్మ గారికి, ZPTC అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు పాటలు పాడి మనల్ని అలరించినటువంటి అన్న నరసింహులు గారికి, అట్లానే ZP కోఆప్షన్ సయ్యద్ మొహియుద్దీన్ గారికి, స్థానిక సర్పంచ్ గారు మడిపెద్ది కవిత గారికి, స్థానిక MPTC గారు సుజాత బాపురెడ్డి గారికి, రైతు బంధు మండల అధ్యక్షులు గారు అన్న భూమారెడ్డి అన్న గారికి, స్థానిక గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు సోదరులు నర్సారెడ్డి గారికి, మాజీ MPTC గారు 2001 నుంచి KCR గారి అడుగులు అడుగు వేసి నడిచినటువంటి సీనియర్ నాయకులు రాజేశ్వరరావు గారికి, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు సోదరులు మహేందర్ రెడ్డి గారికి, सिद्दीपेट मार्केट यार्ड में फार्मर्स डे तकरीब मुनक्किद की गई. इस मौके पर धान से CM KCR और वजीर हरीश राव की तस्वीर बनाई गई. इसके अलावा वजीर हरीश राव की सालगिरह के ज़िमन में रंगनायक सागर के पास पाम ऑयल के पौधों से हरीश राव की तस्वीर बनाई गई. इस मौके पर किसानों ने केक काटकर हरीश राव की सालगिरह मनाई और उन्हें मुबारकबाद पेश की. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक. मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है. आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि CM KCR का मकसद किसानों को बादशाह बनाना है. तश्कील तेलंगाना की 10 साला तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर वजीर तलसानी ने हफ्ते को राइतू डे यानी फार्मर्स डे मौके पर बोयनपल्ली मार्केट यार्ड में किसानों के साथ मुनक़िदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ख़िताब किया. उन्होंने वाज़ेह किया कि इस ख्याल के साथ कि मुल्क को चावल फराहम करने वाले किसान खुश और इज़्ज़तदार हों, रियासती हुकूमत ने किसानों के मसाइल के हल और उनकी तरक्की के लिए बहुत से प्रोग्राम तैयार किए हैं और उन पर
अमल दरामद किया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से कबल किसानों को बहुत से मसाइल का सामना था। फसलों की सही काश्त नहीं होती थी और कीमतें नहीं मिलती थी। ताहम तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सीएम केसीआर ने ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाया और किसानों को खुश करने के ख्याल से कई प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें 24 घंटे बरखी सरबराही, आबपाशी के प्रोजेक्ट्स, रायतू बंधु, रायतू बीमा जैसी स्कीम पर अमलावरी शामिल हैं। इस मौके पर वजीर तलसानी ने बहुत से किसानों और हमाल लोगों को एजाज से नवाजा। ఎవరైనా చనిపోతే మాత్రం ఆ శవం ముందు పేలాలు ఏరుకునే విధంగా ఆడికొచ్చి పెద్ద మరి నంగనాచి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. ఏదో మీకు సపోర్ట్ చేసినట్టు కానీ లేకపోతే గతంలో వాళ్ళు ఏదో ఆదుకున్నట్టు కానీ ఆ డ్రామాలు జరుగుతుంటాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏ డ్రామా లేకుండా ఆ రైతు ఇంటికే ఎవరైతే చనిపోతారో వారి ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు నేరుగా చెక్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది కదా సంతోషంగా. దాంట్లో కొన్ని వేలాది మందికి అవకాశాలు వచ్చినాయి. అంటే రైతు అనేది ఒక నమ్మకంతో ఉండాలనేటువంటిదే ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం. అయితే ఇక్కడ కొంతమంది డ్రిప్ ఇరిగేషన్ గురించి మాట్లాడారు. దయచేసి మీరు మీ కలెక్టర్లను కలవండి. మీ కలెక్టర్ ఆఫీసులు కూడా అద్భుతమైనటువంటి కలెక్టర్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి. అక్కడ మీ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లను కలవండి. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అనేది 100% సబ్సిడీ కింద ఆల్రెడీ ఆ కార్యక్రమం ఉన్నది. దయచేసి మీకు తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం అక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లని మరి సంప్రదించవలసిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. మరి ఇదే కాకుండా కొంత ఆర్టీసీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి మాట్లాడారు. కొంత ఆ తమ్ముడేమో ఆ ఫైన్ వేస్తున్నారని మాట్లాడారు. తప్పకుండా అవన్నీ మాట్లాడతాం. రెండోది, ఇంతకుముందు పల్లె వెలుగు అనేటువంటి బస్సులు వస్తుండే మీ దగ్గర. నేను అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి మరి వీలైనంత వరకు మీకు ఇబ్బందులు లేకుండా దూరం చేయడానికి మా సంపూర్ణమైనటువంటి సహకారం ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం ఎక్కడ కూడా ఏ ఇబ్బందులు పడకుండా మరి హ్యాపీగా సంతోషంగా పిల్ల పాపలతోని కుటుంబాలతో ఉండాలనేటువంటిది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. దాంతోపాటు మీ గ్రామాలలో మీ భూమి ధరలు పెరిగినాయి. భూమి ధరలు ఏమో ఆకాశ याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बंडलागुड़ा मंडल ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर बंडलागुड़ा एमआरओ, मजलिसी सरगर्म कायदीन कारकुनान मौजूद थे। बादियाना रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने डबीरपुरा इलाके का दौरा करते हुए मुर्गी नाले के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, महकमे बरखी, बल्दी व आबरासानी के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। बादियादा मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली पाशा खादरी ने दौरे की तफसील बताई और बताया कि कामों की आजिलाना तकमील के लिए अहदेदारों को हिदायत दी गई है और कामों की तकमील से मुकामी लोगों को राहत मिलेगी। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन जबीरपुरा इलाके में मुर्गी नाले का जो काम बरसों से चल रहा है, अब इसकी 30 बिट का काम जारी है। इंशाल्लाह 10-15 दिन में कम्प्लीट होगा। तो चौथी बिट का भी टेंडर होने वाला है। उसके बाद चौथी बिट का काम होगा। उसके बाद एक आखिरी बिट 5 बिटा है, उसका काम होने के बाद ये मुकम्मल काम खत्म होगा। जबीरपुरा दरवाजे से काम का आगाज किया जाता है। होते हुए ये माता खिड़की रोड का है, यहाँ से तो आगे तक जाएगा गंगानगर में। और ये जिस तरीके से काम तेजी से हो रहा है, बल्कि बढ़ती आबरासानी होती जा रहा है, उसका दौरा किया गया। नतीजे मिलत बरस कामों में तेजी पैदा करने के लिए ऑफिसरों को इंजीनियर की तवज्जो देने के लिए है। एरिया कारपोरेटर रमदार वालों सहित सभी साथ में सब निशानदेही की है। इंशाल्लाह दोनों साइड पे रोड भी आएंगी और सीवर लाइन भी आएंगी, ताकि नाला को क्रॉस करते हुए नीचे पानी के लेन ड्रेनेज के लेन उसको सब कट करके इधर का इधर, उधर का उधर रखेंगे। 2 बिटों का काम है, एक कर रहा, उसके बाद उसके बाद इस इलाके के लोगों को राहत होती है। आधे से ज्यादा काम हो गया, इससे लोगों को सहूलत है, लेकिन मुकम्मल काम होने के बाद तो और ज्यादा सहूलत होगी। जरा मैं तमाम बल्दी भर के आबरासानी अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्तन फौक्तन ये काम का मुआयना करने के लिए वो देते हैं। तो उनसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि काम में तेजी कर। मुल्क में पहली बार रायतू बंधु, रायतू बीमा जैसी स्कीमात पर अमल करने का सहरा तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। ये बात कोड़ंगल रुकन असेंबली
पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने आज तेलंगाना रियासत की 10 साला यौम तासीस तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किदा फार्मर्स डे फेस्टिवल में शिरकत के दौरान कही। उन्होंने कोडंगल हल्के के मद्दूर मंडल फार्मर्स डे प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खिताब किया और सभी को फार्मर्स डे की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि केसीआर ख़ास तौर पर किसानों के लिए एक अजीम लीडर के तौर पर खड़े हैं। ఇంకా ఈ 5 గ్రామాల కష్టతోలుకున్న గౌరవ సర్పంచులు అదే కాకుండా రెండుగట్ట గ్రామ రైతులు అందరూ కూడా అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించి నిన్నటికి 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 9 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకొని నిన్న 2వ తారీఖు నాడు 10 సంవత్సరాలు పోయిన సందర్భంలో మనం దశాబ్ది ఉత్సవాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించారు. అందులో భాగంగానే ప్రతి ఒక్క రోజు 2వ తారీఖు మొదలుకొని 22వ తారీఖు వరకు 21 రోజుల పాటు ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకొని రోజొక పండుగ వాతావరణం లేక రైతుల రోజు రైతు పండుగ ఒకరోజు, చెరువుల పండుగ ఒకరోజు, సంక్షేమ సంబరాల పండుగ ఒకరోజు, ఇరిగేషన్ పండుగ ఒకరోజు. మాత్రమే నీళ్ళు ఎత్తిస్తున్నాం, రైతుకు పంట పండించుకోవడానికి పెట్టుబడి సాయం ఎత్తిస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా చెప్పడానికనే ఈ యొక్క సంబరాలు చేసుకుంటున్నాం మనం. అందులో భాగంగా ఈరోజు వెనుగొండ గ్రామానికి వచ్చినాం. ఇక్కడ వెనుగొండలో గతంలో కరెంట్ చూస్తే 2 గంటలు 3 గంటలు ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు రోజులు వెళ్ళని పరిస్థితి ఉంటుంది. మీకు అందరు రైతులు చాలా మంది ఉన్నారు. అప్పుడెట్లుంది ఇప్పుడెట్లుంది మీకు అందరికి తెలుసు. రైతులకు అందరికి కూడా కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది నమ్మకం లేకుంటుండే. పంట పండించాలంటే కరెంట్ ఉంటుందో ఉండదో, నీళ్ళు వస్తే రావు అని అపనమ్మకం ఉండే. ज़िला निर्मल में फार्मर्स डे तकरीबात बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई। तेलंगाना की 10 साला यौम तासीस तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुधोल हल्के में रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ देहातों के किसानों के साथ एक रैली निकाली गई। बादशाह रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने CM केसीआर की क़यादत में रियासत में किसानों की फलाह बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमात के बारे में वजाहत पेश की। हैदराबाद मुगलपुरा में वाक़ जामियातुल मोमिनात में एक योमी रियासती तरबियती कैंप बराए तालिबात असरी उलूम मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुक़र्रिरीन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमली तौर पर पेश किया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस तरबियती कैंप का इफ्तिताह सदर नशीन रियासत की अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस किस्म की तरबियत दौर हाजिर के तुलबा और तालिबात के लिए अशद ज़रूरी है। वहीं इस दौरान बहैसियत मेहमान खुसूसी डॉक्टर हाफिज़ मौलाना मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाज़ी, सदर सुन्नी यूनाइटेड फोरम के अलावा मौलवी मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट ने शिरकत की। तो यही भी एक मकसद था कि आप लोगों के दरमियान में आना, फिर आप लोगों को बोलना, फिर अहम तरबियती कैंप का जो है इफ्तिताह अमल में लाने के लिए हमको ज़रिया बनाना। मैं तहे दिल से जो है मुफ्ती साहब का और तमाम उनकी टीम का, मुफ्तियान इकराम का, मुफ्तियान साहिबा का, जो आप लोग जो है इतने बड़े असासा को हमारे दीन का एक बहुत बड़ा ये असासा है, जो आप लोग अपनी इल्म की रोशनी में जो है इन लोगों को आप लोग तरबियत कर रहे हैं। यकीनन ये आगे जाती और यकीनन ये हमारे मिलत का, हमारी कौम का बहुत बड़ा असासा है। मैं फिर एक बार जितने भी लोग यहाँ मदरसे के में तालिबात जो हासिल कर रहे हैं, मैं उनको भी जो है खातिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त मदरसे की तालीमी और दीनी तालीम को हासिल करने में लगा रहे हैं। बहुत बहुत फिर एक बार मुझे जो यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हिम्मत अफ़ज़ाई करने के लिए मुफ्ती साहब और तमाम टीम का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वक्त भी कम है मेरे पास, दीगर मीटिंग्स है मेरे पास, आने में थोड़ी ताख़ीर हो गई ट्रैफिक की वजह से भी। फिर एक बार जो है बुला की जो है हमको इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने के लिए शुक्रिया। और ख़ास तौर पर मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर हमारे मुफ्तियाँ साहिबा को जो है मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी अहम तरीन किताब आपने शाये किया है और हम हमारे हाथ से रस्मी चाहिए। फिर एक बार अल्लाह ताला आप तमाम के खिदमत को कबूल करें और थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।
हैदराबाद सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने शाहीनाथगंज पुलिस के साथ मिलकर जुमेरात की रात बेगम बाजार में एक दुकान पर छापा मारा और एक शख्स को सरसों के बीजों में मिलावट के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 50 किलो मिलावटशुदा सरसों के बीज और दीगर मवाद जब्त कर लिया। गिरफ्तार शख्स का नाम भगवान लाल पांडे बताया गया है, जो कोलसावाड़ी बेगम बाजार से है। गिरफ्तार शुदा शख्स और जब्त शुदा मवाद को मजीद कार्रवाई के लिए शाहीनाथगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। 2 जून जुमे का दिन जारी मौसम गर्मा का गर्म तरीन दिन साबित हुआ। हैदराबाद के कई इलाकों में 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ दर्ज हरारत। रियासत ओडिशा के बालेश्वर जिला में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने किया गहरे सदमे का इजहार। आज़मीन हज के लिए हैदराबाद के रेड रोज फंक्शन पैलेस में सेंट्रल हज कमेटी ओरिएंटेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। वुज़रा महमूद अली तलसानी, MLA जाफर हुसैन मेराज, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद व दीगर का खिताब। तेलंगाना भर में मनाया गया फार्मर्स डे। MLC कविता ने जिला कामारेड्डी के सदाशिव नगर मंडल में मुनक्किदा रैतु दिनोत्सवम तकरीब में की शिरकत। CM केसीआर का मकसद किसानों को बादशाह बनाना है। बोयनपल्ली में मुनक्किदा फार्मर्स डे प्रोग्राम से वजीर तलसानी का खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।